Okay. Ma'am, So should I start? Okay, good no, evening, no, good there is evening, good still evening. 2 minutes time left. So we will be starting at 4 o'clock at sharp. Okay. Okay, sharp at Okay, four ma'am. o'clock. And Ma'am, am I audible? yes, yes, you are audible, Okay, and okay. there is no as such internet issue till now. However, it will, if you will face any problem, you can always ask for help. And Okay, ma'am. I welcome all the other distinguished scholars who are here on this platform, and also who are listening there on the YouTube live or Facebook live. Thank you so much for attending this workshop, and we are getting a huge response and a very good response from all over the India. So that shows people's interest in this topic. So we are glad that this in the pandemic era, it's not like we have not been able to discuss anything. So with this technology, which has been sometimes problematic, but sometimes it has become a boon. So let's enjoy the fruits of this technology and come together and discuss these things at one platform. So now it's 4 o'clock. Let me check with Shivi whether live sessions are being streaming right now or not. Shivi, is it live now? Yes, ma'am. Okay. So now everything is done. So okay, Hina, you can start by giving introduction of Dr. Ruplika Khullar. Okay, ma'am. Okay. Good evening, everyone. Welcome to our fifth technical session. And I will be hosting this session. My name is Hina Mushtaq, and I am a PhD scholar at the Department of Philosophy, University of Delhi. मेरा नाम हिना मुश्ताक है और मैं PhD scholar हूँ Department of Philosophy, University of Delhi में. So we have two speakers with us. The first one is Dr. Ruplika Khullar. Dr. Khullar is an associate professor at the Department of Philosophy of Janki Devi Memorial College. Her areas of interest include Indian philosophy, Indian theories of consciousness, continental philosophy, Greek philosophy, ethics, logic, applied ethics, Western philosophy, philosophy of religion, philosophy of film, and postmodernism. एसोसिएट प्रोफेसर होने के अलावा रूपलेखा मैम एक एमिनेंट स्कॉलर भी हैं और उन्हें मैंने कई बारी डिपार्टमेंट में सुना है और जब भी सुना है सब हर बारी कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला है तो मुझे आज बहुत खुशी है कि उन्हें सुनने का मौका मिलेगा फिर से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर Ruplekha ma'am to please enlighten us with her valuable insights. And the topic for today's discussion is women in history. Please, ma'am. Thank you, Hina, and thank you everyone for having me here to speak to you. It is quite a privilege, and I do have Ritu especially to thank for this privilege because we do reach out to our students on a daily basis during our classes, but to be able to reach out to people all over the country who are interested in issues that are so close to our heart, that opportunity comes rarely. So thank you, Ritu, very much for this opportunity. Hina, just a gentle reproach. I think you got the list of specialities mixed up with some other teacher. I am not no specialist, believe me, but my interest areas are philosophy of law, analytic philosophy, and feminism, and of course film studies. So, but that's fine. That Sorry, is ma'am. Sorry. not. That's I'll all mind them for your future purpose. That's all right. So before I begin, could you tell me how much time I actually have so that I can pitch myself accordingly? I would hate to eat into the time of the next speaker. So please, can you give me an Okay, ma'am. idea? You can speak for half an hour so that we can have 15 minutes for question and answer session, and then the next speaker will speak for half an hour, and then Q&A will be happening. Okay, All is that fine, ma'am? That's absolutely fine. That's absolutely fine. I only hope that I have that many things to say to cover that half an hour, but nevertheless. All right. Good afternoon, everyone. And I know that my
presentation. I don't even call it a lecture, but my presentation today has been pitched for a presentation on women and history, or women in history. And it's a very, very kind of broad connection between feminism and history here. And I just thought of the topic of women in history because Women's History Month is coming up next month. It was declared in 1992 in Canada, actually. And so, believe you me, we have a Women's History, International Women's History Month. And that's October in Canada, because it coincides with what is called their Persons Day, that is 8th of October. But it's also celebrated apparently in the United States and UK and Australia, where it is celebrated to mark International Women's Day on 8th March. But anyway, so with Women's History Month coming up, I wanted to say some things about women and history, but not the usual things. So if you're expecting me to speak about women who have contributed in history, then I might disappoint you. If you're interested in how history has ill-treated women, then I might disappoint you also. My intention for today will be to keep focused on a particular writer who's given us a very interesting insight about how history has treated women, and that writer is Gerda Lerner. I chose her because I was thinking that many of my audience will be probably teachers in Delhi University, or even students, and you will be familiar with Gerda Lerner because that's the text that we are teaching at the undergrad level. But if there are many amongst you who are not familiar with her work, then I'll give you a very, very brief recap before I go on to what I have to say. Gerda Lerner's text is called Creation of Patriarchy, and her contention is that so she's talking about the creation of patriarchy, and her contention is that patriarchy is not a divine diktat. It wasn't something that God intended. It is not a natural institution or a natural monolithic construction that came up because nature so ordained. Patriarchy is man-made and was made at a particular point in the history of humankind. If it was made at a point in history, then Gerda Lerner says that the chances are that enough attempts to protest it might bring it to an end within the span of human history today. The other thing she says is that it's not so much what are the roots of patriarchy that's interesting. I mean, she traces it to ancient Mesopotamian civilization, a little after prehistory perhaps. She says that patriarchy is not something that happened overnight. It's an institution that took about 2,500 to 3,000 years in the making. But her interest lies primarily on the factors or structures or social arrangements that have helped patriarchy to remain so entrenched and so much in the driving seat even in today's society. One would have thought that patriarchy could have disappeared with so much enlightenment, so much awareness arousing out for women, and so many women breaking the shackles and breaking the glass ceilings, as they say. And yet patriarchy remains firmly in place. And it becomes the biggest structure that stands in the way for women gaining the kind of developmental goals that they set for themselves, or women managing to realize their own potential to its fullest extent. We simply cannot, because patriarchal structures are in place. So Gerda Lerner has pointed out certain structures,
certain factors that make patriarchy so immovable a force even today. The factors that she lists are the archaic state, family, exchange of women and commodification of women, class, a lack of group consciousness amongst women, women's own cooperation in their oppression, and what she calls hegemony over symbol systems. I'm going to touch upon a few of these factors. Of course, time will not permit me to touch upon every one of them, but what I'm going to do in today's presentation is to see where we stand today as far as these factors are concerned. I just want to explore a bit what has changed from the time that patriarchy took roots, say almost 3,000 years ago in human history, to the 21st century today. Have things changed at all from the factors that were responsible for keeping patriarchy in place in the old ancient times to today's modern 21st century sensibilities and realities of women? What has changed? And that is going to be the focus of my presentation today, with relation, of course, to the factors that Gerda Lerner was talking about. So one of the first such factors was the archaic state. The archaic state became the seat for patriarchal dominance. What does archaic mean? Archaic simply is actually a word with Greek origins. It means ancient or old, and archaic state means the ancient state, as history has recorded about it. The archaic state, the word archaic also refers to a period in Greek history. The word comes from a Greek root, and it refers to a Greek period in Greek history, which is called the archaic period. And that period spans roughly from the 8th century BC to the 4th century BC. Roughly 400 years, the archaic period in Greece. The archaic period followed the Neolithic, Paleolithic eras and preceded what is called the classical period, with which most teachers of philosophy and students of philosophy are familiar. When you teach and learn Greek philosophy, it's the classical period you're generally talking about. All right, so this is the archaic period. The archaic state, therefore, the term refers to the city-states of Greece, which became the first kind of political organizations as we understand political organization today. City-states. Before that, Greece, as we know it today, didn't exist in those days. 400-500 saal before Isa, before Christ. Instead, there were these small little villages and towns which all grouped together, and there was a conglomeration of such states, villages, which were called city-states. So a city-state was a state in which there was one large bustling city. That was the seat of power in every such state. And believe you me, there were more than 1,000 to 1,500 such villages and city-states. It's only later when one of the lawgivers, Cleisthenes, came in and organized them into, say, about 12 or 13 of them. So the city-state was called the polis. Many Greek words today you will be familiar with. You will be able to identify those words. We use them in our language. So polis or policing or political comes from this word polis. And the structure of this city-state was this. There was a polis, the city-state, which was nothing but a huge collective of citizens
that belonged to these various city-states. This polis was organized into what are called councils or assemblies. And the councils and assemblies are very much like our parliament. Fewer number of representatives of citizens who wielded power, who took political decisions, who organized people into groups, who at the district level, who took major legislative decisions or even executive decisions. And these were the so-called lawmakers and decision makers of the city-state, the council or the assembly. The assembly, of course, was all the citizens who were selected from what is called the deme or the dem or demos. जहाँ से democracy आया है ना, demos. The deme or the demos was the village where people lived together, the town or the village level, from which they sent representatives to the assembly. The assembly was large, was huge and unwieldy, तो assembly से और भी छोटे groups बने जिनको council कहा जाता है, ठीक है? In fact, their councils were 400, 500 people. So you can make out that in Greek city-states, the people participated very, very actively in politics or political decision making. Greek city-states were either monarchies or oligarchies, that means rule of a few powerful few people, or democracies. The monarchs, earlier the monarchs were what are called tyrants. That's where the word tyrant comes from. No? A tyrant was a man who held absolute political power within a state and mostly came to power having usurped it. So जबरदस्ती करके power छीनने के बाद वो leader बनता है. A tyrant was distinct from a monarch because the tyrant was not bound by any kind of constitutional law, while the monarch or the king was. No? And Aristotle describes the tyrant thus: any sole ruler who is not required to give an account of himself and who rules. Hello, ma'am. Ruplekha, ma'am. Ma'am, please unmute yourself. I guess there is some technical problem. Kindly unmute yourself. Yes, I have. So was I not audible all this while? No, you were. Okay. You were I'm audible sorry. 2-3-4 Yeah. seconds. All right. Okay, so the tyrants gave place to monarchs and they ruled. But what does that have to do with feminism? You will find that the members of the demes who became representatives of the assemblies and the councils were men. Men 18 years and above could become citizens of the city-state. So no woman in the ancient archaic city-state could become a citizen. They were all non-citizens. So women were bunched together as non-citizens, such as slaves, such as minors or resident aliens, meaning immigrants who had come and lived in Greece and who had not acquired citizenship status. Women were clubbed together among them. So there were no woman decision maker in the political system. It was the men, either the king or a group of people, who took the major decisions in the polis, and the power of these men filtered down to other men, so that at the deme level or at the village level, there were small little groups, pockets like Gram Panchayats, who dealt with a lot of problems, of all the problems that had to do with the people of that village or that town. Therefore, patriarchy, the archaic state became a huge purveyor of patriarchy, क्योंकि औरतों को सिर्फ इसमें कहीं जगह नहीं थी. Obviously, the women were second class or invisible non-citizens of Greek city-states. So,
even the lawgivers. So if you find Herodotus was an ancient historian. He recorded his oral histories and whatever he found wherever he visited in Greece. And in his recordings, there are very clear insights about how most women belonged in the private sphere, and they were not meant to take part in political activity at all. Whereas all other men, it was not just representatives, every man had a duty and a privilege to take part in politics. That was the ancient city-state. What about modern Greece today? Modern Greece is a parliamentary republic, pretty much like us. They have a president elected by parliament, and they have a parliament which operates for 4 to 5 years. The main political power is, of course, wielded by the prime minister, though the president has a lot of other powers. The president can sign a pardon to a criminal. The president can declare ending of war. The president could sign peace agreements or peace alliances and participate in international organizations for welfare. But the president's participation has always to be stamped by or approved by the parliament. So obviously the president has no real powers. The president figure is a ceremonial head in Greece. Today, the president in Greece is a woman with ceremonial presence. Her name is Katerina Sakellaropoulos. Katerina Sakellaropoulos is the president of Greece. And the prime minister, of course, is Kyriakos Mitsotakis, who's a man. Greeks, all of you know that Greece was the first country to exit the European Union. It's after Brexit that Brexit happened. So Brexit के जितने सब discussions चल रहे थे उस टाइम उनमें ये पाया गया. Greece has one of the lowest rates of women's employment in the European Union. It is the lowest ranking country in gender equality index for EU countries. There are many gender sensitive laws such as the law in relation to maternity protection and uniform pay and so forth. But Greece has the lowest adherence rate to these laws, their domestic laws as well as international treaties. In fact, the people at Greece during the referendum highlighted the absence of gender equality, which they said was a human right. So they said that it must be placed at the heart of Greek politics. So not much has changed from the day of the archaic state in Greece. We are talking about Greece, of course, but you will not, I hope, be prevented from drawing the parallels in many countries, including ours. Okay, the second factor was family. Imagine the family, which is considered to be the most protected of areas or spaces for women, happens to be the largest contributor for patriarchal control. In ancient Greece, the family was very much like the kind of joint family that we are all familiar with in India today. There used to be a patriarch, the man of the family, the head of the family was the father, and the interfamilial power relations were of authority, of domination of women, and of complete dependence by women. So women were dependent, women were ruled or directed to do as the patriarch or the father decided, and the father had complete authority. This authority passed from the father to the son or to the brother, and the woman was a complete subject of what is called paternalistic control. Paternalism simply means that the woman was passed from the father to the husband and to perhaps the brother if her husband passes away, and then to her son. So the woman stood as a completely passive participant in the ancient Greek family systems. 12-15 साल में उनकी शादियां कर दी जाती थी,
and the marriage never happened because of who the woman wanted to marry. It happened as the decision of the father, and the father would pay a bride price to whoever bought her and was good enough to take the responsibility away from her hands. Doesn't this ring a bell? It is very much like what we have in our country. The class of the woman was negotiated by who she belonged to. So if she belonged to a wealthy Greek man, she was a wealthy woman. And so wealthy women were never allowed to actually leave their homes. They could travel, they could go outside and travel outside only with the help, with the permission of their with the permission of their masters. But the poorer women could, उनको जाके काम करना होता था, पानी लाना होता था, बच्चों को खिलाने के लिए जो कुछ भी वो गैदर कर सकती थी वो सब करना होता था. That's why the permission was given to women to go out. But otherwise, women belonged into the private sphere completely. Cut back to today's family. In Greece, Greek people are very family oriented. Large उसमें रहते हैं, joint family systems में रहते हैं. You will find that if you've seen My Big Fat Greek Wedding, you will find how families gather together. But the men are brought up to think that they are the providers. The women may work, the women may hold down a position, but the women have to take care of the domestic sphere, and the women will have to not be paid more than the man, because that was somehow a sign of emasculation of men. So family became a seat for patriarchal dominance through patrilineal lineage. Women did not inherit property or rights, and through paternalistic control. From family, the next factor she talks about is commodification. And commodification is the transforming a woman into a thing, when she becomes a unit under someone else's control. Any commodification of human beings means putting a price on that person, and who should not be commercialized or transferred. No, a human being ought not to be commercialized, put a price on in terms of monetary price, should not be exchanged, should not be given away, bought or sold. But commodification of women simply means that women were bought and sold. Earlier, there was the so-called intertribal exchange of women. शादी में के लिए औरतों को दे दिया जाता था, या प्लीज करने के लिए किसी को औरतों को दे दिया जाता था. पीस ब्रोकर करने के लिए women used to be gifted away. Women were lent out by families for reproductive purposes, for sexual pleasure, for production of children. So women actually became the first private property of society. They were commodified. What was commodified when women was their reproductive capacities, the fact that they could provide sexual gratification, and the labor that they could do without any payment. So all of this became commodified. That was ancient Greece, or ancient India, or ancient civilization. What about today? Commodification in modern times, and you find evidence of this everywhere. No? So you will find them in advertisements, TV shows, song lyrics, internet pages, striptease clubs, sexual telephone services, pornography, sex shops, swing clubs, nightclubs, in everything possible. A woman's body, a woman's sexuality, the fact that there is an appeal that women have towards men is commodified very, very blatantly. So commodification hasn't changed at all. Its forms may have changed. I'm going to speak a little bit about something really important. I will not go into the next factors because I think I'm going to be ending in 5 minutes, and I cannot take into account the other factors which are actually equally interesting, but I'm going to talk about slavery.
slavery was one of the major instruments for patriarchal control. Earlier, the women were the slaves. And who were the slaves? How did communities get slaves? Either through winning in a war, so the conquering army captured the women and made them slaves, or buying and selling women. That was how slavery was practiced at one point of time. No, so the women were captured alive for obvious purposes, because they could work, they could produce children, they could be sex slaves, and so on. The men were never captured alive, because the men would, have something to say about being captured alive, and they may turn around and actually do violence against the conquering army. So the men were killed. कि उनको जैसे मौका मिले उनको मार दो, नहीं तो वो पलटवार कर सकते हैं. औरतें तो नहीं करेंगी, and औरतें are useful commodities to have. This was slavery in those days. Would we say that slavery has been abolished? A lot of anti-slavery movements happened, and perhaps slavery of the Iltutmish variety, the ancient slave dynasties, those have been abolished. Slavery was abolished in America with much fanfare after the Civil War. But has slavery gone out of our lives? We would like to think so, but of course not. We have today a watch body called the Anti-Slavery International, and it takes a look at the new and modern forms of slavery that are being practiced. I would like to read a bit here, and then I will stop for today. Slavery has taken many forms, and these are the forms that slavery has taken today. One, human trafficking, which includes sex trafficking. Trafficking मतलब लोगों को अपने घरों से उठा करके कहीं और भेज देना, है ना? As without asking, without their consent, and without doing them a service or doing something good for them. So human trafficking, men are also trafficked. No, they are sent away to outside countries as laborers, as cheap laborers. उनका passport छीन लिया जाता है, उन्हें घर आने के तरीके और वो नहीं समझ में आते हैं और नहीं घर भेजा जाता. But women are trafficked 10 times more than men, and women are trafficked for many more purposes. Men are trafficked mostly for labor, but women are trafficked for sexual pleasures. Women are trafficked for prostitution. Women are trafficked for cheap labor, and women are trafficked for domestic work. They are trafficked for forced labor. You know what forced labor means? Any work or service against your will, under threat of punishment. It is most often found in places such as industrial sites, agricultural and fishing sites, construction, mining, manufacturing units, market trading, and illegal practices. इन सब जगहों में आपको औरतें मिलेंगी, और ये औरत, they are forced to work there because now they have become debt slaves. They have no means to go back home. They are paid a pittance, and they are beaten and coerced when they want to leave. Pushpa, there was a woman in Punjab who said that we do not stop even if we are ill. What if our debt is increased? So we don't dare to stop. Other workers tried to leave, but two got caught. They locked them up and started beating them. They told the workers, if you want to go from here, you must first pay 60,000 rupees. So forced labor. But now consider the worst form of slavery, which is domestic work. Domestic work is a sector which is particularly vulnerable to exploitation, and domestic slavery is a recognized phenomenon by the Anti-Slavery International. These are the UN figures, in their global report on human trafficking in 2016. 51% of identified victims of trafficking for domestic work are women, 28% children, and 21% men. 72% people exploited in the sex industry under the pretext of domestic work are women. And the people who traffic them, 63% are men,
and only 37% are women. So domestic workers are migrants. Domestic workers are often abused sexually, they are abused physically, they are forced to work odd hours, they are not allowed to leave households. Many of these, the so-called servant system that we recognize today, masks blatant exploitation of women, treating them as slaves. So slavery is very, very predominant even today. It's present, and it's a practice that has only changed names and has become legitimized through several other practices that we have. I would have liked to speak about the so-called hegemony of symbol systems, or about the lack of group consciousness amongst women, two other factors that are responsible for patriarchal dominance. But maybe I can do that if you have any questions for me. Thank you so much for listening. Thank you so much, ma'am. Thank you for this stimulating lecture. And I believe that marriage is also a kind of slavery that we overlook today. Absolutely. So speaking about our next speaker is Dr. Rajesh Kumar Chaurasia, who is an assistant professor at Vasanta College for Women, Rajghat, Varanasi. He has been awarded Dr. Vijayashri Smriti Yuva Puruskar by Akhil Bharatiya Darshan Parishad in 2011. और एक अच्छे स्कॉलर होने के नाते उनके पास 3 पब्लिकेशंस भी हैं, अच्छी पब्लिकेशंस हैं। 2 जो हैं उन्होंने एज एन ऑथर की हैं पब्लिश, और एक एज एन एडिटर। तो जो 2 बुक्स उनके पास जो उन्होंने एज एन ऑथर पब्लिश करवाई हैं वो हैं जे कृष्णमूर्ति मानव स्वतंत्रता, और दूसरी वैदिक पंचकोश भाष्य वार्तिक, और भारतीय मनोविज्ञान जो एज एन एडिटर उन्होंने पब्लिश कराई है। और उनकी एक और बुक द सॉन्ग ऑफ लाइफ जो है वो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। तो राजेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में आज जो बात करेंगे, आई एम सॉरी, जो टॉपिक है आपका इंटीग्रल फेमिनिज्म, उस पर कुछ बात करें। थैंक यू। डॉक्टर राजेश जी, आपको अनम्यूट करना होगा खुद को। और रूपलेखा मैम, thank you so much for your lecture, and we will reserve our comments and our questions once the second speaker has done with his presentation, so that we will have a more interactive session. Okay, Yes. Till then we will be listening to the next speaker, Dr. Rajesh Chaurasia. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Ritu ji. My voice is clear to all of you? Yes, it's Yes, sir. clear. Thank you Ajay ji, thank you Ritu ji. सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जितना नर्वस मैं आज हूँ किसी विषय में बोलने के लिए, उतना इसके पहले कभी नहीं था। इसका कारण ये है कि कभी-कभी वैसे तो पूरा फिलॉसफी में हर टॉपिक बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही मतलब व्यापक होता है, लेकिन चूंकि एक ये है कि हम लोगों को कभी भी फेमिनिज्म पढ़ाया नहीं जाता है। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत जाना तो मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ। हालांकि सिमोन द बोवुआर की किताब है सेकंड सेक्स, वो मेरी हमेशा से फेवरेट रही है। और इसके अलावा फिर मैंने महादेव वर्मा की श्रृंखलाई कड़ियां पढ़ी, तो मैंने इन्हीं 2 किताबों को आधार बनाया। उसके बाद मुझे कुछ सिमोन द बोवुआर के कुछ अभी लेटेस्ट 1982 तक के कुछ मुझे इंटरव्यू मिले, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो शुरू से मैं ये विषय मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, लेकिन जब मैंने इसमें थोड़े बहुत बोलने के लिए मैं तैयारी की तो मुझे आश्चर्य लगा कि इतना महत्वपूर्ण ये विषय वस्तु है, तो हम इसको स्कूल से लेके और अपने कॉलेजों में और अपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते क्यों नहीं है एज ए सिलेबस। क्योंकि वो स्कूल ही वह जगह है जहाँ से ये कंडीशनिंग जो लिंग भेद की है वहीं से शुरू हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है और मैंने इसका नाम रखा है इंटीग्रल फेमिनिज्म, तो मैंने कुछ स्लाइड तैयार किए हैं जो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा।
I think my slide is visible to all of you now. No, sir. No, no, sir. No, sir, it is not visible yet. So there is a problem. देवाशीष जी परमिशन You have वो to दीजिए share your शेयर screen. करने के लिए आपको प्रेजेंट करना होगा अपना स्क्रीन. हाँ अभी तो कोई ऐसा रिक्वेस्ट तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर. सॉरी ओके. ये वर्क नहीं कर रहा है ये शेयर बटन. आई डोंट नो व्हाई. सो आपने no अपना problem. एंटायर स्क्रीन वो किया है, चूज किया है. यस हाँ हाँ उसके बाद शेयर स्क्रीन पे करने के बाद से वो हो जाएगा. हो नहीं रहा है ये. some problem is there but no problem. क्या मैम बता. Yeah, it's working actually, but you know you can continue. Yeah, I can continue without my slide. So okay. मेरे पास स्लाइड है जो मैंने पहले प्रिंट निकाल लिया था. मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए. तो सबसे पहले मैं ये जो श्रृंखला की कड़ियां हैं. सॉरी एक्सक्यूज मी सर, इफ यू वांट आई कैन. आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ था अपना वीडियो प्रेजेंटेशन, सो इफ यू वांट आई कैन प्रेजेंट दैट. पूजा जी प्लीज डू फॉर मी. हाँ ओके पूजा डू दैट. Pooja, is it working? Now it is visible. Yes. I think my slide is visible to all of you now. I think. Yes, it is visible. Yes, it is. Yes, it's visible. So, okay. Now I got the point where I was missing. तो तो जो मैंने मैं कुछ बातें मतलब जो श्रृंखला की कड़ियां की है इसमें पढ़ रहा हूँ आपके लिए, जो मुझे लग रहा है बहुत ही फंडामेंटल है इस फेमिनिज्म के मुद्दों को समझने के लिए. ये जो मैंने सबसे पहले पढ़ रहा हूँ इस श्रृंखला की कड़ियों से है, महादेव वर्मा की किताब है. इस समय हमारे समाज में दो प्रकार की स्त्रियां मिलेंगी. एक वे जिन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि वे भी एक विस्तृत मानव समुदाय की सदस्य हैं और उनका भी एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व है जिसके विकास से समाज का उत्कर्ष और संकीर्णता से अपकर्ष संभव है. दूसरी ओर वे पुरुषों की समानता करने के लिए उन्हीं की दृष्टिकोण से संसार को देखने में, उन्हीं के गुणों का अनुकरण करने में जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति समझते हैं. सारांश यह है कि एक ओर अर्थहीन अनुसरण, दूसरी ओर अनर्थमय अनुकरण, और दोनों प्रयत्न समाज की श्रृंखला को शिथिल और व्यक्तिगत बंधनों को सुदृढ़ और संकुचित करते जा रहे हैं. तो मैंने ये इसलिए चुना आप लोगों के सामने कि जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी स्त्रियों का जबकि आपको ये आप देख ही सकते हैं महादेव वर्मा की श्रृंखला कड़ियों से है और वो भारतीय संदर्भ में ही बात कर रहे हैं. तो जो दो प्रकार की स्त्रियों में वो बांट रहे हैं, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी आपने ऐसे कई अभी हमारे दो दिन के ही हमारे वर्कशॉप में ये बात आ चुकी है कि हम जब कभी भी पीछे मुड़ के देखते हैं वो कहते हैं कि पहले नहीं था, है ना. पहले कोई मतलब विमेन और वुमेन में, मैन और वुमेन के बीच में कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. अब जाके धीरे धीरे सभ्यता के साथ हुआ है. लेकिन इसको महादेव वर्मा जो उस काल की स्त्रियां हैं जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है तो उसको उसमें रख रही हैं. दूसरे वर्ग में बांट रही ऐसी स्त्रियां जो कि अभी मॉडर्न गर्ल्स हैं लेकिन वो सिर्फ पुरुषों का अनुकरण कर रहे हैं. एक है अर्थहीन अनुसरण और दूसरा है अनर्थहीन. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मुद्दे को समझने के लिए मुझे लगा. और दूसरा मैंने उसी से लिया है जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे जब मैं बात करूंगा आपके जो वेस्टर्न संदर्भ में सिमोन द बोवेर की बात करूंगा तो उसमें ये बात मिसिंग है वहां उस जगह पे जो महादेव वर्मा में विद्यमान है. एक मैंने उन्हीं की भूमिका से लिया है ये कि ध्वंस के लिए ध्वंस के सिद्धांत में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा है. मैं तो सृजन के उन प्रकाश तत्वों के प्रति निष्ठावान हूँ जिनकी उपस्थिति में विकृति अंधकार के समान विलीन हो जाती है.
तो जो आप चाहे वेस्टर्न के किसी भी, चाहे आप मार्क्सवाद को देख लें, तो वहाँ ये है कि मतलब वहाँ ध्वंस के लिए ध्वंस का सिद्धांत को वो लोग मान रहे हैं, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझ रहा हूँ इस बात को, है ना, क्योंकि वो जो मीन्स और एंड के बीच में, वो जो मीन्स को भी वो लोग नहीं समझते हैं कि उसको पवित्र होना, जैसा गांधी जी हमारी इंडियन विजन समझती है, उसी बात को यहाँ भी इस फेमिनिज्म के मुद्दे में भी महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि ध्वंस के लिए ध्वंस के सिद्धांत में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा है। इस मुद्दे को अगर हम कभी हल कर सकते हैं, अगर जो भी अगर कोई मुद्दा है ही जो हमारे सामने तथ्य है, तो वो सृजन के उन प्रकाश तत्वों के से हो सकता है जिनकी उपस्थिति में विकृति की सारी विकृति अंधकार के समान विलीन हो जाती है। ये थोड़ी आपको रहस्यमय लग सकता है, लेकिन उतना है नहीं। जब हम आगे इंटीग्रल फेमिनिज्म को देखेंगे तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने बहुत सारे कुछ और मैं पढ़ना चाह रहा हूं जो डायरेक्ट मेरे इंटीग्रल फेमिनिज्म से संबंधित हैं। वो है सिमोन द बुआवर के, उनके इंटरव्यू से है। उसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है और मैं इंग्लिश को नहीं ढूंढ पाया हूं, इसलिए मैं उसी को पढ़ रहा हूं, लेकिन वो हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा है, और अच्छा भी जो हिंदी भाषी हैं वो अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। तो एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण ये लगती है सिमोन द बुआवर के बारे में, कि उन्होंने एक नहीं, अपने इस इंटरव्यू में अनेक बार इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो स्वयं कभी भी किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार वो स्वयं क्यों नहीं हुई है। वो उन्होंने इस बात को बार बार एक्सेप्ट किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं उसी संबंधित कुछ पढ़ रहा हूं। हाँ, जैसे एक बात बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी पढ़ते हुए, मैं कुछ टुकड़े इसी पढ़ रहा हूँ इंटरव्यू के, ये सारे के सारे ये जो टुकड़े पढ़ रहा हूँ, ये सारे के सारे बाद में आप अगर इसको याद रखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे जब मैं अपनी इंटीग्रल फेमिनिज्म की बात करूंगा। जैसे एक मैंने यहाँ से उन्हीं के हिंदी अनुवाद है सिमोन द बुआवर का, कि हमें पुरुषों की दुनिया को नकार नहीं देना है, बल्कि उस पर लगा पुरुषत्व का ठप्पा मिटाना है, क्योंकि कुछ भी हो यह दुनिया हम औरतों की भी तो है। मेरा विश्वास है कि मुक्त स्त्री पुरुषों की तरह ही सर्जनात्मक शक्तियों से लैस होगी, लेकिन मैं यह नहीं मानती कि स्त्रियां किन्हीं सर्वथा नवीन सिद्धांतों का आविष्कार कर लेंगी। अगर आप ऐसा मानते हैं तो एक तरह से आप स्त्रियोचित प्रकृति में ही विश्वास कर रहे हैं, और इस तरह से औरतपन का मैंने हमेशा विरोध किया है। हमें इस तरह की सभी अवधारणाओं का जोरदार खंडन करना चाहिए। मतलब अगर आप इस बात को ठीक ढंग से समझें अगर सिमोन द बुआवर को, जो मुझे लग रहा है कि बात सही भी है, तो कोई स्पेशल, जैसे अभी जो हमारा इनॉग्रल सेशन था उसमें हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं, मैं एकदम नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, उन्होंने ये बात उठाई थी कि कोई फेमिनिज्म का एस्पेक्ट होना चाहिए मेटाफिजिक्स में। लेकिन इस बात को मैं बार बार इस इंटरव्यू देख रही हूँ, इस तरह की कोई डिवीजन को मानते ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए जो सिमोन द बुआवर का जो उनका सेकंड सेक्स है उनकी किताब, उसके लास्ट में वो खुद कहती है कि हमें एक जो स्त्री पुरुष के बीच में एक ब्रदरहुड चाहिए। मतलब जो अभी आगे एक और पढ़ूंगा तो मेरी बात ये स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, जैसे औरत के शरीर को आप अपने आप में बहुत ही महान और गरिमामय नहीं बना देना चाहिए। जैसे कभी कभी भारतीय दर्शन में इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो उस तरह से वो इसके विपक्ष में लिख रहे हैं सिमोन द बुआवर कि औरत के शरीर को अपने आप में बहुत ही महान और गरिमामय नहीं बना देना चाहिए। यह नहीं मान लेना चाहिए कि औरत का शरीर इस दुनिया की कोई नई तस्वीर दिखाता है। यह बहुत ही बेतुकी और हास्यास्पद बात होगी। इसका मतलब होगा लिंग विरोधी हो जाना। जो स्त्रियां इस तरह के रहस्यवाद में यकीन रखती हैं वे विवेकहीन और अतार्किक होती हैं। यह वह पुरुषों के ही बनाए खेल रही होती हैं, जो उन्हें ज्यादा दक्षता के साथ स्त्री को ज्ञान और सत्ता से दूर रखने और उनका शोषण करने की इजाजत देता है। शाश्वत नारीत्व का विचार मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य के निर्माण में प्रकृति की भूमिका बिल्कुल नगण्य होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। इसके अलावा मैं यह भी मानती हूं कि स्त्रियां प्राकृतिक रूप से पुरुषों से ना ही हीन होती हैं, और ना ही मैं यह मानती हूं कि वे पुरुषों से
श्रेष्ठ होती हैं, ना ही स्त्रियां पुरुषों से हीन होती हैं, और ना ही वो अगर हम उनको श्रेष्ठ बनाएंगे तो ये भी एक प्रकार का सीमन द बोवर बता रही है कि एक प्रकार का पुरुषों का ही फेंका हुआ जाल है, ना ही वो श्रेष्ठ है। वो एकदम एक उसके अपने कंक्लूजन में सेकंड सेक्स के कहते हैं कि ब्रदरहुड चाहिए बिटवीन द मेल एंड फीमेल, बिटवीन द फेमाइन एंड मैस्कुलाइन। और एक आध और मैंने चुना था, इससे मेरी बात आसान हो जाएगी। सर अपना स्लाइड भी आप आगे बढ़ाते रहें। नहीं, अभी स्लाइड, चूंकि मैं ये स्लाइड अभी बढ़ाऊंगा। अच्छा, ओके। एक रेफरेंस के बाद जैसे एक जो मैं इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ वो एलिस स्वेजनर के हैं, जो स्वयं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं। वो उनसे पूछती हैं, एलिस पूछती है, किसी न किसी रूप में हर स्त्री अपमान, बहिष्कार और अवमानना से भिज्ञ होती है, मतलब जानती है उसको, कहीं कभी अपने जीवन में कभी न कभी अपमान को, बहिष्कार को, मतलब कभी न कभी वो विक्टिम बन जाती है। इस तरह का प्रश्न पूछा एलिस ने। तो देखिए आश्चर्यजनक ढंग से क्या कह रहे हैं सिमोन, यह खास तौर से मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कभी किसी तरह का अपमान व अवमानना नहीं झेलनी पड़ी। मैंने इस कारण से कि मैं एक औरत हूं कभी यंत्रणा नहीं भोगी है। इसके बावजूद, जैसा कि मैंने द सेकंड सेक्स की भूमिका में भी लिखा है, जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप फला तरीके से इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप एक स्त्री हैं, तो यह बात मुझे भयानक रूप से खिजाने और चिढ़ पैदा करने वाली लगती है। मैंने हमेशा ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का करारा जवाब दिया है। यह बात अत्यंत बेतुकी और हास्यास्पद है। क्या आप फला तरीके से इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप एक मर्द हैं? तो मैं इसलिए ये बात मैंने रखी है, ये सारी बातें, कि दरअसल जिस तरह से फेमिनिज्म का मूवमेंट बढ़ा, आप सब जानते हैं कि जो सेकंड सेक्स है सिमोन द बोवर के, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो लेकिन आप ये बात देखिए कि वो स्वयं बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आपने ये इंटरव्यू पहले नहीं पढ़े होंगे जिन लोगों ने, तो उनके लिए, मेरे लिए तो कम से कम आँख खोलने वाले थे, इसलिए मैंने ये बात आपसे शेयर की। तो जैसे मैं अभी, जब ये किताबें महादेवी वर्मा की जो श्रृंखला कड़ियां हैं, वहां भी ये बात बहुत बार बार आती है कि स्त्री को अपना मतलब खुद का एक आत्मज्ञान से, एक मतलब वो स्वत्व की बात करती है महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा ये कहती है कि जब महिला को या स्त्री को अपने स्वत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो वो कहती है कि इतनी महत्वपूर्ण बन जाएगी, इतनी उसमें डिग्निटी पैदा होगी कि पुरुष अपने आप झुक जाएगा। मैंने बात इसलिए आपसे शेयर की है क्योंकि मैं जब भी सेकंड सेक्स मेरी, जब मैं स्टूडेंट था, तब से आज तक मेरी फेवरेट किताब बनी हुई है सिमोन द बोवर की। क्योंकि ये सिमोन द बोवर एक ऐसी स्त्री है, जब भी आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आप भले उनकी सारी बातों से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक बहुत ही प्रतिभावान स्त्री है। उनकी सारी वो चीज उसमें भरी हुई है पूरी की पूरी इस किताब में। और ये बात मैंने इसलिए भी उठाई है क्योंकि जैसे हम अगर दोनों की, सबको पता है कि वो साथ रहती थी सिमोन द बोवर, है ना। और मैं कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि मैं एक फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सार्ट को भी पढ़ने का मौका मिला, तो जब कभी मैं देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जो सिमोन द बोवर है वो कभी कहीं भी किसी भी प्रकार से भी सार्ट से उनकी कम प्रतिभा नहीं है। लेकिन तब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो, मतलब कभी अगर हम ऐसी, एक तो पहले कंपेरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला था सिमोन द बोवर का, कि उन्होंने मतलब सिर्फ अपने आप को फेमिनिज्म तक रखा, इसके अलावा उन्होंने कुछ लिटरेचर लिखा, उन्होंने कभी फिलोसफी में कुछ नहीं लिखा, जिस तरह से सार्ट ने नथिंग और बीइंगनेस लिख के एक बहुत बड़ा काम किया फिलोसफी में। लेकिन मैं एक बात, हमारा प्रश्न पूरा यही है कि क्या जब भी हम इस बात को करते हैं कि दर्शन शास्त्र में जो स्त्रियों की भूमिका की बात करते हैं, तो हम जैसे कि पहले बाला गणपति जी ने भी कहा था कि हम नाम गिनाने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पहले भी रही है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो हमने प्लेटो या कांट जैसे कोई फिलोसफर क्यों नहीं पैदा किया। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो हम ये देखेंगे, हाँ, लेकिन भारतीय दर्शन के साथ एक अच्छी बात ये है कि हमारे सूत्र काल में स्त्रियां थी, इस बात को महादेवी ने भी माना है। और मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में सूत्र काल की स्त्रियां थी, जिनमें गार्गिका, मैत्रेयी, इन सब का नाम लिया जाता है। अभी इस विषय पे पूरा का पूरा एक लेक्चर है, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा पूरी तरह से, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति में ये बड़ी से बड़ी पोजीशन है कि एक कोई स्त्री ऋषि बन जाए, मतलब वो किसी मंत्र को रिवील्ड करने वाली बन जाए। और जब मैंने अभी देखा तो ऐसे बहुत सारे मंत्र खोए जा सकते हैं, जैसे आप बहुत प्रसिद्ध आपने सुना होगा ये तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये मंत्र उसका मैत्रेयी का है।
ठीक है, तो वहां पे ये बात कहीं ना कहीं सही है, महादेवी भी इसको मानती हो, मैं भी मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पहले मतलब एक बहुत बहुत पुराने समय में भारत में हो सकता है कि स्त्रियों की स्थिति सही रही होगी, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि धीरे धीरे बिगड़ गई। तो हमारा प्रश्न है कि जैसे हम यहाँ प्लेटो और कांट की बात करें, उसी तरह से हम यहाँ अगर शंकराचार्य की, नागार्जुन की बात करें, तो हमारा प्रश्न उसी तरह का है। ऐसा नहीं कि स्त्रियां कभी फिलोसफर नहीं रही हैं, लेकिन उस तरह से कभी क्यों नहीं हुई जिस तरह से एक नागार्जुन है या शंकर है। तो मुझे लगता है कि इस कहीं ना कहीं ये, अभी जो आगे मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो मैं उसमें इसी विषय पे आने वाला हूँ। तो एक मिनट के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए, मतलब इसको आप अन्यथा मत लें कि अगर हम सिमोन द बोवेर की, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ सिमोन द बोवेर के लिए, लेकिन हम एक मिनट के लिए तुलना करें अगर सिमोन द बोवेर की सार्त्र से, है ना, तो सार्त्र ने सार्त्र को हम बड़ा फिलोसफर मानते हैं और उसने फिलोसफी काम भी किया, लेकिन सिमोन ने क्या किया, सिमोन उतनी ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना जो एरिया था लिमिटेड कर लिया, जिसको इमेनेंस कहती है। स्वयं अभी उसी को मैं पढ़ने वाला हूँ, इसको इमेनेंस और ट्रांसेंडेंस कहती है। और मुझे लग रहा है कि जब कभी भी अगर कोई फेमिनिज्म का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट बनेगा तो वो यहीं से ही निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। हो सकता है कि मैं सही ना सोच पा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं अभी तक सोच पाया हूँ, मुझे लग रहा है यहीं से जो वास्तव में फंडामेंटल जो फिलोसफी की शुरुआत होगी फेमिनिज्म की, भले कोई मेरी तरह से ना सोचे, अलग तरह से सोचे, है ना, लेकिन बनेगा यहीं से, क्योंकि वो मूलभूत जो भेद है कॉन्शियसनेस का, जो बार बार इसमें और बाद में भी, जैसे आज हमारे डीएन द्विवेदी जी ने बताया था, इमेनेंट की बात की थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को फेमिनिज्म के मुद्दे तक इमेनेंट कर लिया, सीमित कर लिया, लेकिन सार्त्र ने सीमित नहीं किया। तो एक उतना ही बड़ा फिलोसोफर तब बन सकता है जबकि वो अपने आप को कितना बड़ा वर्ल्ड व्यू दे सके संसार को, अभी तो पूरा संसार उसको एक फिलोसोफर के रूप में उसको स्थापित करेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, हो सकता है ये एक कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट स्लाइड है मेरी ये। अब ये यहाँ से मैं अपने इंटीग्रल फेमिनिज्म के बिल्कुल मूलभूत पार्ट पे जाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले भी मैं, चूंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि, हालांकि मैंने मतलब अर्थ लिए हैं इमेनेंस के और ट्रांसेंडेंस के, वो बिल्कुल मेरे हैं, मैंने उनको बहुत व्यापक अर्थ में देखा है, उस तरह से ना ही सार्त्र ने देखा है। जैसा कि अपने इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दार्शनिक पृष्ठभूमि उन्होंने सार्त्र से ही ली है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मतलब अगर सिमोन द बोवेर से ज्यादा व्यापक दृष्टि सार्त्र की है, और सार्त्र से ज्यादा दृष्टि मैं ले रहा हूँ, मैं जहां से इंडियन फिलोसफी से, जे कृष्णमूर्ति से, इंडियन फिलोसफी से जहां से ले रहा हूँ दृष्टि, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सार्त्र से भी ज्यादा व्यापक है। तो लेकिन मैं एक सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इससे भी हम समस्या में एक फिर से छोटा सा मैं एक सेकंड सेक्स का एक पढ़ने वाला हूँ, जो स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। द वुमेन confined to immanence try to keep man in this prison as well. Thus the prison will merge with the world and she will no longer suffer from being shut up in it. The mother, the wife, the lover are the jailers. Society confined by man decrees that woman is inferior. She can only abolish this inferiority for destroying male superiority. She does her utmost to mutilate, to dominate man. She contradicts him. She denies his truth and values. But in doing that, she is only defending herself. Neither immutable essence nor flawed choice has doomed her to immanence and inferiority. मतलब यहाँ पे अगर आप इसको, मैं थोड़ी बहुत बीच में हिंदी में कर दूंगा, अभी बहुत समय खर्च नहीं कर रहा हूँ कि इसको पूरा हिंदी कर दूं यहाँ पे, लेकिन सार ये है कि आप इसको देख रहे होंगे जिस तरह से वो कह रही है कि जो विमेन है उसने अपने आप को पूरा तरह से इमेनेंस में अपने आप को बांध लिया है। मतलब जो एक इमेनेंस कॉन्शियस मतलब होता है जिस विषय को देखे उसी में चुक जाए, उसके पार कुछ भी ना देखे, मूलभूत से। और यहाँ पे जब इमेनेंस शब्द का यूज हम फेमिनिज्म के अंदर करते हैं, स्त्री के संदर्भ में करते हैं, तो इस अर्थ में आ जाता है कि अपने घर, अपने बच्चे, अपना छोटा सा जो उसका मतलब इन्वायरमेंट होता है, स्त्री ने अपनी कॉन्शियसनेस को उससे उस तक सीमित कर दिया है। उसकी कॉन्शियसनेस मतलब एक मेल की तरह ट्रांसेंडेंस को नहीं, मतलब अतिक्रमी नहीं है, ट्रांसेंडेंस नहीं है, यही इसका अर्थ है यहाँ पे। और आश्चर्यजनक ढंग से आप अगर हम फिलोसॉफी की बात करें तो मैं फिर से महादेवी वर्मा की श्रृंखला कड़ियों को फिर से पढ़ रहा हूँ। इसी पे ये देखने को कैसे दो अलग अलग समय में हुए लोग अलग अलग भाषाओं में कैसे एक जैसी बात कर रहे हैं, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ।
कि वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया है। मतलब दोनों चाहिए। जब हम इमेनेंस की बात करते हैं तो हृदय की विकास की बात करते हैं, फीलिंग की विकास की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं मस्तिष्क के जो है रीजनिंग है वो छूट जाता है। तो महादेवी कह रही है अपनी श्रृंखला कड़ियों में, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक का हम यहाँ इमेनेंस अर्थ में, फीलिंग अर्थ में ले सकते हैं, रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो। और यही बात महादेवी भी कह रही है कि स्त्री ने रागात्मक संबंध तो बनाया समाज से और इस जगत से, लेकिन उसने बौद्धिक संबंध नहीं बनाया है। और हमारा सबसे बड़ा यही प्रश्न यही है कि वो रागात्मक संबंध तक, या हम अगर सिमोन द बोवेर की भाषा में कहें कि वो इमेनेंस तक क्यों सीमित रहेगी उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस में ट्रांसेंडेंस क्यों नहीं आया। तो अब इसके बाद मैं इसको देखूंगा कि जैसे मैं हमेशा ये सोचता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस इशू बीइंग अ मैन और वुमन। हम कभी भी मैन और वुमेन बनकर इस इशू को समझ ही नहीं सकते। जैसा कि आप याद करिए, मैंने वो सिमोन द बोवेर के इंटरव्यू से पढ़ा था, जब कोई कहता कि आप स्त्री ऐसा सोच पा रही हैं, तो उन्होंने कहा था तो ये बात मुझे बहुत खिजाने वाली लगती है ना। क्योंकि कोई भी, देखिए मैं अभी सोचता हूँ कि कोई भी स्त्री इस तरह से क्यों नहीं सोच पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसेंडेंस सिमोन द बोवेर में था, क्योंकि उन्होंने खुद कभी वो विक्टिम नहीं बनी है। जैसे कि उन्होंने अनेक बार अपने इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया है, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन के जो सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन है मेल फीमेल वाला, उसकी वो कभी विक्टिम नहीं बनी है। इसीलिए मैं कहता हूं, ना ही सिमोन द बोवेर कभी भी समझ सकती हैं विक्टिम बन के, ना ही आप समझ सकते हैं, ना मैं समझ, कोई नहीं समझ सकता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जिस अवस्था में है, अगर वो उसमें उसका पीड़ित है, तो पूरी तरह से उसके सारे एस्पेक्ट को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसकी चेतना ज्यादा इमेनेंस को प्राप्त हो जाएगी उस इशू के साथ। इसलिए मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस इशू बीइंग अ मैन और वुमेन। Therefore, to understand completely this issue, a consciousness is needed which is beyond feminism and masculinism. एक ऐसी हमको कॉन्शियसनेस की जरूरत है जो दोनों के परे से, जो दोनों को दूरी से देखे। To understand the issue, a critical awareness is needed which is neither feminine or masculine. This consciousness is both immanent and transcendent. It is immanent consciousness when it tries to understand something sympathetically. वही मैं ये कह रहा हूं कि वही कॉन्शियसनेस जब किसी चीज को बहुत मतलब प्रेम की तरीके से, भावुकता की तरह से सेंसिटिव होकर समझना चाहता है, तो वही कॉन्शियसनेस क्या बन जाती है, इमेनेंट बन जाती है। एंड व्हेन इट वॉचेस समथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, द सेम कॉन्शियसनेस बिकम ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का भेद हमको नहीं मानना पड़ेगा, नहीं तो इस स्त्री पुरुष के बीच में क्या होगा, एक ऐसा भेद बन जाएगा जिसको हम कभी पाट ही नहीं पाएंगे। इसको ना कोई स्त्री अगर वो सही समझता है तो कोई भी स्त्री दार्शनिक भी इसको ना मानेगी, ना ही मैं इस भेद को मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि दोनों की कॉन्शियसनेस के मतलब जब अलग अलग तरीके से जब वो काम करती है, जब किसी चीज को सिंपैथेटिकली समझना चाहती है, तो वही कॉन्शियसनेस इमेनेंट बन जाती है, और वही कॉन्शियसनेस जब किसी इशू को दूर से देखती है, तो वही कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस बन जाती है। It is the integral feminism because it believes that the division of feminine and masculine consciousness is not fundamental. Fundamentally, the consciousness is one, and an integral consciousness is required to understand the issue. तो इसी अर्थ में, चूंकि मैं इसी अर्थ में इंटीग्रल फेमिनिज्म इसको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जो इमेनेंट कॉन्शियसनेस है और जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, देखिए अब अगर हम कैसा इंटीग्रल कॉन्शियसनेस को नहीं मानेंगे, तो जो सिमोन द बोवेर बार-बार कह रही हैं कि जैसे इसमें एक और जगह आता है, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा, टाइम इसमें चला जाएगा, कि वो कह रहे हैं कि वो उसको जो फेमाइन क्लास की तरह कह रही हैं, नॉट क्लास, कास्ट की तरह कह रही है। वो एक जो फेमाइन कास्ट बन गया है। तो अगर जो कह रही हैं कि बाबरा सिमोन द बोवेर कह रहे हैं कि उसको इमेनेंट से निकल के ट्रांसेंडेंटल की तरफ जाना है। अगर ये दो ऐसी चीजें होती जो अलग अलग होती, तो वो हमेशा जिस कारा में जिस कैद की बात कर रहे हैं सिमोन द बोवेर, उसमें हमेशा रह जाएगी। इससे हमें ये मानना पड़ेगा कि वही कॉन्शियसनेस है, बस वही कॉन्शियसनेस अलग अलग जब उसकी जब अलग अलग प्रकार में जाती है, अलग अलग तरह से देखती है, तो वही कॉन्शियसनेस, इसीलिए पूरी कॉन्शियसनेस को इंटीग्रल मान के चला रहा है। इसीलिए इस तरह के फेमिनिज्म को मैं
इंटीग्रल फेमिनिज्म कह रहा हूं। तो देयर इज एन इंटीग्रल कॉन्शियसनेस विच इज इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल बोथ। हमको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि एक ऐसी इंटीग्रल कॉन्शियसनेस को मानना पड़ेगा जो दोनों है, तभी तो कोई इमिनेंट कॉन्शियसनेस से ट्रांसेंडेंटल की तरफ जा पाएगा और ट्रांसेंडेंटल से हमेशा इमिनेंट की तरफ आ पाएगा, एंड सेम टाइम बियॉन्ड बोथ। तो जो इंटीग्रल कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूं वो दोनों है और दोनों से हमेशा अलग भी है। We could call it an awareness or choices awareness। जो शब्द है इसको देख के हो सकता है बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरी पीएचडी जय कृष्णमूर्ति पे है, तो बहुत सारे लोग इसको सोचेंगे मैंने बहुत सरलीकरण कर दिया है, लेकिन आप यकीन मानिए मेरा, जब मैं यहाँ पे ये शब्द यूज कर रहा हूँ चॉइसलेस अवेयरनेस, तो ये भी जय कृष्णमूर्ति बिल्कुल अलग अर्थ हो जाता है। तो यही खूबसूरती, शब्द वही का वही है। क्योंकि देखिए, जब सीमन द बोआर कहती हैं कि जो स्त्री है वह पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है ना। उनका बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, इसमें कहीं मैंने लिख के भी रखा है। हाँ, उनका उन्हीं का स्टेटमेंट अगली साइड में है जी कि वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स विमेन। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिमोन द बोआर। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा है, अगर तो जैसे चॉइस कहां से आ रहा है, मतलब ये इट इज अ कंडीशनड कॉन्शियसनेस। तो जो अपन फीमेल कॉन्शियसनेस की बात हम लोग जो कर रहे हैं, या हम लोग जो मेल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, इट इज अ मतलब अ कॉन्शियसनेस व्हिच इज कंडीशनड एज मेल कॉन्शियसनेस, द सेम कॉन्शियसनेस व्हिच इज कंडीशनड एज फीमेल कॉन्शियसनेस। और तभी तो ऐसा होगा कि तभी तो उनकी बात सही होगी। अगर ये बात सही है अगर सिमोन द बोआर की, कि वन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम्स वुमेन, कोई जन्म से कोई कभी स्त्री नहीं होता है, बन जाता है। इसका मतलब ये ओनली इट इज, और तभी उस कंडीशनिंग को तोड़ के कोई लिबरेटेड भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है उस कंडीशनिंग से। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब यहाँ जो चॉइसलेस शब्द लगा है, चॉइस का मतलब है कि जो एक तरह से हम चूज क्यों करते हैं, एक स्त्री कुछ चीजों को चूज क्यों कर रही है, क्योंकि उस तरह से वो उसकी कॉन्शियसनेस कंडीशन हमने कर दी, हमारे समाज ने, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट ने उसको हमें सब बताया गया है, इसलिए वो इस तरह से सोच रही है। अदरवाइज बिल्कुल सिमोन द बोआर की तरह मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा महादेव वर्मा से मैं रेफर कर रहा हूँ, और उनके पक्ष में ज्यादा हूं मैं इस मुद्दे पे, कि वास्तव में कॉन्शियसनेस का कोई अल्टीमेट हमको भेद नहीं मानना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो इंटीग्रल फेमिनिज्म है उसको हम क्रिटिकल फेमिनिज्म भी कह सकते हैं। हम क्रिटिकल फेमिनिज्म क्यों कह सकते हैं? बिकॉज इट क्रिटिसाइज बोथ फेमिनिज्म एंड मैस्कुलिज्म। ये दोनों की क्या है, परीक्षा करता है। जो हमारा इंटीग्रल फेमिनिज्म है वह क्या है, वह क्रिटिकल फेमिनिज्म भी है, क्योंकि यह जो अच्छी बातें हैं फेमिनिज्म की उनको एक्सेप्ट करता है, और जिन बातों पे वो लग रहा है कि ये बातें और अभी एग्जामिनेशन की जरूरत है इनको क्रिटिसाइज करने की, उनको क्रिटिसाइज करता है। इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि इट इज अ क्रिटिकल फेमिनिज्म। तो जैसे क्रिटिक ऑफ एंटी फेमिनिज्म, एंटी फेमिनिज्म इज राइट व्हेन इट कंसीडर दैट द मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म ultimately is against men and it is against their some patriotic institutions like marriage, family and motherhood. But the anti-feminism is wrong when it neglects the problem of women and support the view of women given by tradition and religion. तो इस मामले में क्रिटिक एंटी फेमिनिज्म सही है कि जब बहुत ही रेडिकल बन जाता है फेमिनिज्म, तो वो मेल को अपने एक मुख्य राइवल की तरह देखता है, और उनकी सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, इवन की विवाह भी, फैमिली विवाह है आपका, परिवार और आपका मातृत्व, सबको कहता है कि इन सब में स्त्री को, एक खुद सिमोन द बोआर स्वयं कहते हैं कि स्त्री को लिबरेटेड होना तो सबसे पहले मैरिज की संस्था, परिवार की संस्था और मातृत्व, इन सबसे उसको मुक्त रहना पड़ेगा। अदरवाइज वो कहती हैं सिमोन द बोआर कि आप विमेन लिबरेशन को भूल जाइए। तो इंटीग्रल फेमिनिज्म without being aggressive to men try to examine the problem of women under these institutions and rather generalize things. It believes that these issues should be considered as individual freedom of women. इंटीग्रल फेमिनिज्म का क्या सोचता है कि हमको, पहली बात बहुत ज्यादा, हालांकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं सिमोन द बोआर भी अपने लास्ट में अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि हमको मतलब पुरुष को साथ में लेके चलना है, लेकिन बहुत से ऐसे बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने सेकंड सेक्स में कहा था, और उस बात को बार बार कहीं ना कहीं वो बार बार मान भी रहे हैं कि वो कह रहे हैं वो मेल और फीमेल में एक मतलब एक फंडामेंटल डिवीजन करती दिख रही है, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उनके विचार कुछ चेंज हो गए, उनके इंटरव्यू में ऐसा लग रहा है।
ठीक है। तो जो इंटीग्रल फेमिनिज्म ऐसा सोचता है कि हमको क्या करना है, परीक्षा करनी है, हमको परीक्षा करनी है सारे जितने इंस्टीट्यूशन, जैसे ये मुख्य रूप से मैं इन्हीं में खतरा देख रहा हूँ, जैसे मैरिज है, विवाह है। तो पहले हम ये देखें कि ये जो विवाह नामक संस्था है वो किस प्रकार से बंधनकारी बन सकती है। तो क्या हम उन सब चीजों, उन बंधनकारी तत्वों को नहीं हटा सकते हैं विवाह से? मेरे सवाल है, फैमिली से क्या नहीं हटा सकते हैं? मदरहुड, मातृत्व, जो कि बहुत ही एक सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर सारी स्त्रियां मातृत्व से मना कर दें तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, अगर हम अल्टीमेट ऐसी यूनिवर्सिटी सोचने लगे। तो मैं सोचता हूँ हमको इन सब में देखना चाहिए, पोजीशन इनको एग्जामिन करना चाहिए कि किस तरह से ये उसके लिए बाध्यकारी हो जाती हैं। और अगर कोई स्त्री चाहे, उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम पे छोड़ देना चाहिए। कोई स्त्री अगर ऐसा चूज करती है कि उसको विवाहित नहीं रहना है तो उसको रहने दिया जाए। कोई कहे कि उसको फैमिली नहीं बनानी है तो ना बनाए। कोई एक अपना पर्सनल चॉइस की तरह, उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम की तरह उसको फ्रीडम लेने दिया जाए। या कोई माता जैसे स्वयं ये तीनों चीजें विरोध में थी, वो सिमोन द बोवार, और उन्होंने ना कभी शादी की है, ना कोई परिवार बनाया, और ना ही वो कभी किसी बच्चे की माँ बनी। तो उनका एक इंडिविजुअल, मैं ऐसे देखता हूँ कि उनका एक इंडिविजुअल फ्रीडम था उनका, और हमको इस बात, उनका किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मैन का, विमेन का इस मामले में सम्मान करना चाहिए। और ये डॉक्टर राजेश जी, just a reminder for the time, you know that you are also one of the organizing committee, so you will too have to follow the rules. Okay. Yes, sure. Yeah. So मेरे पास कितना समय है अभी इसको और बताने का? Just try to conclude in 5 minutes. Yeah. 5 minutes. 5 minutes. Yes. Okay. Okay. I am concluding. तो देखिए, चूंकि ये मैंने पहले बताया है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, स्पीकर हमेशा भूल जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वो मतलब उसके बाहर हो। तो थैंक यू फॉर रितु कि उन्होंने मतलब मुझे इसको कर दिया। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मेरे इसमें आ ही रही है, हालांकि थोड़ा मैंने उसको दो तीन स्लाइड में कुछ और मैंने बस यही काम किया था। मैं चाह भी रहा था कि मेरा जो लेक्चर हो बाद में हो, ताकि हम एंटी फेमिनिज्म की सारी बातें हो चुकी हों। जैसे बाला गणपति जी का लेक्चर आने वाला है, कितने प्रकार के फेमिनिज्म हो वो सब आ चुके हों, क्योंकि वो उन सब के बाद ही इस पेपर का कुछ एक महत्व बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उसी तरह से वो मैं अब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि समय की कमी हो गई है, और हमको जैसा वो एकदम सही कर रही है ऋतु जी के, हमको उसका एक समय के अनुसार ही चलना है। लेकिन मैंने अपने उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है जो हमको, जिसको समझना ही चाहिए, जो 5 मिनट में मैं इसको बोल के इसको खत्म कर रहा हूँ, खुद समझ के और समझा के। According to integral feminism, the inner revolution, transformation in the consciousness is more important than external revolution. एक बात मेरी प्रीवियस स्लाइड में छूट गई है। असल में मैंने एक में ये बात रखी है, ये जो सच में बहुत महत्वपूर्ण आपको बतानी चाहिए, कि जो दरअसल क्या है कि ये पूरी समस्या, इसको मैं कैसे देख रहा हूँ, और जब मैं सेल्फ नॉलेज का शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो ट्रेडिशनल परंपरागत अर्थ में नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से कृष्णमूर्ति करते हैं वो बिल्कुल एक विद्रोही उनका तेवर है, और बिल्कुल भी वो सामान्य अर्थों में उसको सेल्फ नॉलेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और वहां पे भी आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी, जैसे हम ये थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डेज ऑफ विमेन, उसके बंधनों के लिए अगर हम ये मान लें कि पुरुष ही जिम्मेदार है, तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक स्वयं खुद ही बंधन में न बंध जाए, दूसरे को नहीं बांध सकता है। एक मैं अगर और सरल शब्द में कहूँ कि कंडीशनड कॉन्शियसनेस ही दूसरे को कंडीशनड करती है, इसलिए इसको मिलके हल करना पड़ेगा, नहीं तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इंटीग्रल फेमिनिज्म में, लास्ट में उपसंहार में कहा जा रहा है कि इसलिए इनर रेवोल्यूशन बहुत, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला साइकोलॉजिकल है। हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे मुद्दे पे जो इतना सेंसिटिव है कि हमको कोई एक्सटर्नल प्रयास नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि सिमोन द बोवार खुद मान रही है अपने 82 के अपने इंटरव्यू में कि आज जो पोजीशन जहां से हम चले थे फेमिनिज्म में, हम लोग वोटिंग के अधिकार से लेके चले, तो आज जहां हम आज जिस लीगली हम जहां पे आ गए हैं, तो एक जगह सिमोन द बोवार कहती है कि आज की स्थिति में अगर कोई स्त्री अगर ना वो सब प्राप्त कर सके जो उसको प्राप्त करना है, तो समझे ईमान के चलना चाहिए, वो स्वयं जिम्मेदार है। तो इस तरह से आज की तारीख में ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक इनर क्रांति की जरूरत है। तो ये बात, इसको कह के मैं बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि इंटीग्रल फेमिनिज्म मानता है कि द इनर रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन द कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल रेवोल्यूशन, because the transformation of consciousness could bring the external revolution, but the external revolution could not bring the inner revolution. Although the integral feminism
give more importance to the transformation of the consciousness, but it does not cancel the revolution of external conditions. यद्यपि जो इंटीग्रल फेमिनिज्म की जो फिलॉसफी है वो है जो आंतरिक क्रांति है चेतना की, उसको ज्यादा महत्व दे रहा है, क्योंकि अगर मेरा प्रश्न है कि अगर महादेवी वर्मा ये कर सकती है, उससे बाहर निकल सकती है, अगर उस जमाने में सिमोन द बोवार उससे बाहर निकल सकती है, वो कहती है मैं कभी विक्टिम नहीं बनी, तो आज की तारीख में विमेन क्यों नहीं बन सकती? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सम इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज मिसिंग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इंटरनल अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो एक्सटर्नल जो रेवोल्यूशन होगा अपने आप घटित होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेवोल्यूशन घटित हो भी जाएगा, अगर हम बाहर की सामाजिक, राजनीतिक और लीगल अगर जो कंडीशंस उनको ठीक भी कर दें बाहर से, तो भी कोई इनर आपका जो रेवोल्यूशन है वह घटित नहीं होने वाला है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रीसपोजेस अ चॉइसलेस अवेयरनेस एंड द ऑल आवर इन्वेंशंस, all goodness of our life could be realized through this awareness। जो भी अच्छा है हमारे जीवन का, चाहे वो दर्शन हो, चाहे हमारा साहित्य हो, चाहे हमारे सारे वैज्ञानिक हमारे आविष्कार हो, सब क्रिटिकल थिंकिंग से, एक ऐसी अवेयरनेस से पैदा होते हैं जो कि ट्रांसेंडेंटल भी है और इमिनेंट भी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Rajesh ji. Now the platform is open for discussion and questions. So Hina, please read out those questions which have been asked. Okay, ma'am. While mentioning the name of the speaker. Okay. Okay, ma'am. Okay. So the first question is to Dr. Rajesh. Sir, the question is why literature on feminism is intellectual differentiated from entire other intellectual philosophical literature. Can we group all the topics of philosophy against feminism? अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? सर चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। किसका है ये? पूजा राज? नहीं, यामिनी भूटानी का। यामिनी, yes, I have find. While literature on feminism is intellectual differentiate from entire other intellectual philosophical literature, can we group all the topics of philosophy against can we group all the topics of philosophy against feminism? मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ यामिनी जी, क्योंकि आप देखिए कि मैं एक ऐसी कॉन्सिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो कि मतलब कोई बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रल फेमिनिज्म में किसी जो बेसिक फंडामेंटल्स को मान ही नहीं रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि उसको अपने इमेनेंस, जैसा कि सिमोन द बोवार भी कह रहे हैं, और मैं आंतरिक क्रांति की बात कर रहा हूँ, जब तक वह घटित नहीं होगी और इस तरह से कोई भी कुछ उसका मतलब विरोध नहीं। हाँ, वह बातें जरूर विरोध में है जो स्त्री के खिलाफ कही गई हैं, जिनका हम लोग तो पर्याप्त रूप से बात करें, उनको तो हमको पूरा, जैसे आज सर ने अरिस्टोटल की बात की, वो सबको जरूर हमको एकदम बच्चों की तरह मजाक समझ के, चाहे वो अरिस्टोटल ने क्यों ना कही हो, चाहे किसी भी बड़े दार्शनिक ने कही हो स्त्री के बारे में, क्योंकि अगर वो भेदभावपूर्ण है तो हमको उसको उस फिलोसफी को नेग्लेक्ट कर देना पड़ेगा। लेकिन सारी फिलोसफी ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर, आपने अभी जब साइमन डी बोवार की बात करी थी तब आपने कहा कि सार्त्रे ने जो है उन्होंने काफी लिखा आगे एग्जिस्टेंशियलिज्म वगैरह पर, लेकिन साइमन डी बोवार ने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया फेमिनिज्म पर। तो अक्सर ये फेमिनिस्ट थिंकर्स के बारे में ये बात की जाती है कि वो इस लिटरेचर में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। पर सर, मेरा ये पूछने का मतलब था कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी जो स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट होता है वो हर किसी का पर्सनलाइज्ड वो होता है, पर हम हमेशा ये सवाल सिर्फ फेमिनिस्ट थिंकर से ही पूछते हैं कि आपने इसके अलावा क्यों नहीं लिखा। ये बेशक एक सवाल है, बट उनके मतलब मेरा ये मानना है कि ये स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट ही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर वास्तव में अगर इस फेमिनिज्म को लेके भी अगर वो चलती है, लेकिन और ज्यादा सोचती, मतलब इसी विषय को भी और उसी में अपने आप की कॉन्सिस्टेंस को और भी, जैसे आज ये बात हो ही रही है ना, जैसे मैं ऋतु जी की इस बात की तारीफ करता हूँ कि वो और एरिया को उसमें जोड़ रही है, तो भी वो उस चीज को हासिल कर लेंगे, है ना। लेकिन आपको एक किसी विशेष, अगर आप अपने आप को लिमिटेड कर लेंगी तो वो आपका, फिर भी मैं मान ही रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आधी मतलब कभी किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा हूँ कि फेमिनिज्म महत्वपूर्ण नहीं है, या जो अपने आप को, या मैं उसके लिए बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हूँ जिसने अपने आप को केवल फेमिनिज्म में ही अपने आप को मतलब सीमित कर लिया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैं पहले कह ही चुका हूँ
कह ही चुका हूं कि मतलब हमको इसको स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ाया जाना चाहिए विषय में, क्योंकि जहां से ये बात शुरुआत होती है, जहां से वहीं से हमको उसको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आपको और बड़े इससे भी बड़े मुद्दों को लेना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ फिलोसॉफी में, जैसे प्लेटो ने लिया, जैसे कांट ने लिया, जैसे नागार्जुन ने लिया, और उसमें जब हम बड़े फिलोसॉफी की बात करते हैं, शंकर की बात करते हैं, नागार्जुन की, तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें जैसे वो लोग ने इस बात को कहते हैं, हालांकि फेमिनिज्म इस बात को नहीं मानता है, लेकिन उसमें इंक्लूडेड है। जरूरत इस बात की है कि जो फेमिनिज्म की समस्याएं हैं उसमें, जैसे मैंने कोशिश की, मैं थोड़े बहुत जय कृष्णमूर्ति की फिलोसफी को पढ़ा हूं, तो मैंने कोशिश की उस चीज को फेमिनिज्म की तरह से सोचने की। तो आप अगर चाहे अगर कोई, तो उसको इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज में, उस मुद्दे को समझना पड़ेगा, तो उसके बाद ऐसी कोई परेशानी मुझे लग रहा नहीं आएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। हो सकता है कि बाद में मेरे विचार बदल जाए, अभी तो शुरुआती दौर में। हेलो या मे आई से सर, मे आई? रेखा जी, हाँ, yes, thank you so much. Sir, I really appreciate your presentation. बहुत अच्छा लगा सुन के, इंटीग्रल फेमिनिज्म की आपने बातें की, और सचमुच अच्छा लगता है जब एक मेल फेमिनिस्ट प्रेजेंट करता है, उन्हें सुनने में और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो सुनने में, मतलब लगता है कि हम कैसे एक मेल फेमिनिस्ट को किस तरह से देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव में उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और एक फीमेल फेमिनिस्ट जब बातें करते हैं तो उस दोनों का जो एनालिसिस है उसमें फर्क तो होता है, लेकिन वो फर्क जरूरी है जानना और समझना। तो आपकी एक दो बातें जहां मुझे ट्रबल कर रही है, जहां आपने महादेवी वर्मा की बात की, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया महादेवी वर्मा ने, कि स्त्री अगर अपनी डिग्निटी को उभार ले तो वो पुरुष को झुका सकती है ना? तो ये जो डिग्निटी है, ये डिग्निटी भी तो कहीं ना कहीं पुरुष द्वारा तय की हुई है, जहां तक उस स्त्री को पहुंचना होता है। डिग्निटी स्त्री नहीं मतलब अपनी जो डिग्निटी है वो स्त्री ने नहीं बनाई है, ये पुरुष समाज ने ही एक डिग्निटी का एक पैरामीटर डाला है। तो कहाँ तक महादेवी वर्मा अपनी इस कथन में सही रही कि स्त्री अपनी डिग्निटी तक पहुंचे तो फिर वो ये कर ले, तो पुरुष को झुका सकती है? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा, ये आपने इनर रेवोल्यूशन की बात की, आपने अभी कहा जैसे लास्ट में कि वुमेन अगर अपने इनर रेवोल्यूशन करे, अगर आज के दिन वुमेन अपनी वॉइस नहीं निकालती है तो वो कहीं ना कहीं खुद जिम्मेवार है। तो आज के दिन अगर हम देखें, लड़कियों को देखें, वुमेन को देखें, तो अपना वॉइस निकाल रही है, लेकिन उनके वॉइस को कहाँ तक उनको ये प्लेइंग फील्ड इक्वल मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कहाँ तक मिल रही है, ये भी बहुत देखने वाली बात है। और यही रीजन है कि एक वुमेन को देके दूसरी वुमेन चुप हो जाती है, क्योंकि उनके वॉइस को वो अपॉर्चुनिटी, उनके रेवोल्यूशन को वो सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं समाज फिर से जिम्मेवार हो जाता है वुमेन को चुप कराने के लिए। तो मैं आपका इसमें रिएक्ट देखना चाहती हूँ, प्लीज। जी, देखिए आपने, रेखा जी, मैं आपकी पूरी बातों का सम्मान कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि सच में ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, और ये ऐसी बात है कि जिससे हम सब संबंधित है। अगर जैसे मैं ही बदल जाऊंगा तभी तो मेरा व्यवहार अपने परिवार में बदलेगा, इस तरह का मुद्दा है ये, बहुत ही सेंसिटिव बात है। लेकिन आपने अगर पहले भी ध्यान दिया हो कि सच में ही मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि आप अगर सच में ही हमेशा विक्टिम बनी रहेंगी, जैसे मैंने ये, आपने इस बात को मिस कर दिया लगता है, जब मैंने कहा कि अगर वो सिमोन द बोवेर भी इतना सोच पाई, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी इस तरह अपनी विक्टिम तरह, जैसे आप अपने आप को या किसी और की तरह से विक्टिम की तरह देख रहे हैं, और अगर विक्टिम की तरह देखेंगे तो आप, मैं कितने भी, क्योंकि देखिए मैं और मेरी वाइफ दोनों, मेरी वाइफ इतनी बातें मुझे बताती है विमेन के बारे में कि आपसे शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, जो हमारे आसपास के समाज में हो रहा है। हम लोग दोनों मतलब अंदर अंदर इस बात में एक्टिव हैं, तो मुझे खुद आश्चर्य लगता है। फिर भी मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर वो एक अपने आप को विक्टिमाइज करके देखेंगी तो पूरी तरह से उस मामले को नहीं समझ पाई, ना ही वो उसमें से कोई क्रांति कर पाएंगी। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी उसी परिस्थिति में, इसलिए तो कोई बना बनाया उत्तर नहीं दिया जा सकता किसी को भी, आपको की उसी परिस्थिति के अंदर उसको अपनी जो वो विक्टिम अगर हो रही है तो विक्टिम के उससे ऊपर उठ के ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस के ऊपर लाके देखना पड़ेगा कि इस परिस्थिति में अब और क्या हो सकता है मेरे लिए अच्छा। और अगर वो इस तरह से देखेगी तो पक्का अपनी उसमें सुधार कर पाएगी। अगर एक मतलब आज से मतलब अगर वो 1950 में तो किताब ही आ गई थी सिमोन द बोवेर की, अगर वो अपने आप को इस तरह से कर सकती हैं, महादेवी वर्मा उस जमाने में इस तरह से इतनी कविता लिख सकती है, सृजन कर सकती है, तो आज की नारी तो कर ही सकती है। लेकिन इसमें कोई बना बनाया उत्तर नहीं है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो विक्टिम की तरह अगर सोचेगी तो कभी भी उस मुद्दे को पूरी तरह नहीं समझ पाएगी और हमेशा संघर्ष को जन्म देगी, और संघर्ष में हमेशा
और अशांति पैदा करेगी। तो ध्वंस के लिए ध्वंस का सिद्धांत जो महादेवी वर्मा कह रहे हैं उससे कोई समस्या हल नहीं होगी। May I ask one question? May I ask one question? Sure, sir. Hello? Sure. Yes, sir. Hello? Yeah, my first question is to the first speaker. Because Ruplika, 2 points were please left. unmute yourself. Yeah. Yes. Yeah. So she was talking about 5-6 points. And I think 2 very, very significant points were not presented. So once we take the symbolic systems along with the lack of group consciousness, then only we can explain the continuity of the patriarchy she is talking about. The question is state, the family, the commodification, how all these structures continued with a power structure to subjugate women, and what is the role of cultural systems in that, in creating the hegemony of consent in Gramscian sense, which led to the lack of group consciousness among women, that they could not organize themselves to fight against the patriarchy. This is the question, first one. And now the second question is to Rajesh ji. Rajesh ji दार्शनिक के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और उनका एक तरीके से इसी तरफ है कि मनुष्य की चेतना में जब तक रूपांतरण नहीं होता तब तक मनुष्य की या फेमिनिज्म की या कोई भी और सामाजिक समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि रूपांतरण का ये हजारों साल से हमारे साथ है और हमारी चेतना का रूपांतरण 1-2 केसेस को छोड़ के शायद ही, तो जब हम एक सामान्य चेतना के स्तर से लेके चलेंगे तब हमारे सामने ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं पैट्रियार्की के, ये सामने खड़े हो जाते हैं। तो केवल अपनी चेतना के रूपांतरण से, क्या हम स्टेट से, क्या हम पैट्रियार्कल फैमिली से, क्या हम एक मार्केट के कॉमोडिफिकेशन से, क्या अपनी एक विक्टिम पोजीशन जिसमें कि मजबूर होकर ट्रैफिकिंग होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, गरीबी में क्या क्या नहीं करना पड़ता है, तो वो सारे जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको कहीं राजेश जी क्या आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि हम इतिहास को बदलते तो हैं, लेकिन इतिहास को हम इतिहास की दी स्थितियों को स्वीकार करके ही बदलते हैं। और आप जिस चेतना की बात कर रहे हैं वो इतिहास से बाहर वाली बात है और मैं समझता हूं कि वो ज्यादातर लोगों पे लागू नहीं होती। कृष्णमूर्ति पे लागू हो सकती है क्योंकि उनको कभी अपने जीवन में रोजी रोटी के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन जो व्यक्ति या जो स्त्री या जो पुरुष इसके लिए संघर्ष करता है तो वो अपने आप एक शोषणदायी व्यवस्था में बंध जाता है और उससे निकलने के लिए उसको बाकायदा संघर्ष भी करना पड़ता है। वो केवल चेतना के रूपांतरण से संभव नहीं है। ठीक है, डिकंडीशनिंग ऑफ डिक्लासिंग की भी बात मार्क्स में आती है, डिकंडीशनिंग की भी बात आती है, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, वो बदलाव में एक भूमिका अदा कर सकता है और बदलाव को पूरी तरह ला नहीं सकता। क्या रिस्पॉन्स है, आप बताएं। Yes, I suppose I should go first. Alok, Alok ji bol rahe hain. Sure, you should go first. Otherwise, the link between the two presentations will not be clear. Your presentation is very much linked to the second one. So we will go to second one after that. Thank you. Yes, actually, I got impressed by your question to Chaurasia ji more than your observation on what I had presented, and I would like to say that that's exactly how I would also spoken if I were to address Chaurasia ji, that feminism is ultimately an agenda driven struggle. So
bringing in a metaphysical understanding of consciousness is bringing in a language that has already been designed by patriarchal forces. So to talk about revolution, inner or outer, to talk about a consciousness that can take a step back and look at the male and the female is a language that reeks of the kind of appropriation of language that has happened by patriarchal institutions. So women never made this language. To be forced to explain their experiences in this term is to deny the fact that feminism is about struggle. It's a political, if anything, it is a political agenda-driven practice. So anyway, but your observation about the fact that I did not speak about the lack of group consciousness, yes, I was pressed for time and I would have liked to speak about it. And this lack of group consciousness is also combined with the whole idea of women's complicity in their own domination. This consciousness never got a chance, because you said what is the role of culture? It is the role of culture in its entirety that has made women passive and deny their own subjectivity. When the whole process of socialization pushes women into the private domestic sphere, her awareness, her energy to come out of it and to be able to form a group which could, work together against these so-called structures of oppression is not going to be an easy thing to have. Women have come together in groups to protest things, but women have not come together in groups to protest their oppression as women. Perhaps today Tahrir Square में जो हो रहा हुआ या जो Shaheen Bagh में हुआ, even though so many of you might have different political ideas about the Shaheen Bagh protest, but for a minute if you look at it as a gender-based protest, then this is the example of women coming together and realizing an experience that all women may have. So it is important to talk about this lack of group consciousness holding women back from claiming that place under the sun. Hegemony over the symbol system is such a large discussion on its own that much that I would like to talk about this appropriation of symbols and how much of an impact this appropriation of symbol systems has had on the women seeking their own identity. It's a very, very large question. Perhaps we would need a separate discussion for that. But yes, what Gerda Lerner is pointing us towards is the fact that there has been this appropriation, and symbols are powerful ways of controlling. They are depictions and representations of conditions. So, and they have this subliminal message of making women believe what's going on. The meaning systems that they convey are so strong that they get implanted in the minds of women themselves. So this whole idea of passivity, of lack of subjectivity, of not being able to overcome, or even the so-called victimhood feeling, is so much part of being deprived of our own robust symbols that would give us a sense of identity and respect. Yes, ma'am. हिना, मैम अभी चरसिया जी को भी अभी अच्छा इसका रिप्लाई देना है जो क्वेश्चन है, जो आलोक सर चरसिया जी आप बोलना चाहेंगे अभी? यस। तो मुझे लग रहा है आलोक जी ने इस बात को मिस कर दिया है। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि जब हम लोग कृष्णमूर्ति के ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत को इधर ला रहे हैं फेमिनिज्म में, तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। जो एक्सटर्नल है वो जरूरी है, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि, और एक बात और आलोक जी भूल गए हैं, क्योंकि अगर सच में ही अगर सिमोन द बोवार सही है, क्योंकि वो कह रही है कि अगर मतलब वो इसीलिए ये सब मुझे लग रहा है सोच पाई क्योंकि वो खुद कभी विक्टिम नहीं बनी है। तो ये बात वैसी नहीं है जैसे सारे लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने मेरी बात को कहा है कि वास्तव में इस मुद्दे में ये मान रहा हूँ।
आलोक जी की बात मान रहा हूँ कि इसमें एक एक्सटर्नल रेवोल्यूशन की भी जरूरत है एक हद तक, लेकिन मैं अल्टीमेटली इस बात को मान रहा हूँ कि एक्सटर्नल रेवोल्यूशन हम जितने भी कर लें, जैसे अभी इसी इंटरव्यू में एक बात आई थी सिमोन द बोवेर के, कि देखिए हर देश में उस जमाने में 82 का है, अभी तो पता नहीं हमने कितने प्रकार के मेल डोमिनेंट के तरीके निकाल लिए हैं, नए नए तरीके हम लोग इजाद कर रहे हैं मेल डोमिनेंस के। तो आप इधर से कोई तरीका एक्सटर्नल रेवोल्यूशन में निकालेंगे, उधर से मेल दूसरा कर लेगा, जब तक कहीं ना कहीं ये, और मैंने पहले भी बताया है कि कृष्णमूर्ति के ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत को बहुत गलत तरीके से समझा गया है ना। जैसा कि मैंने कृष्णमूर्ति के सेमिनार में बताया था कि कभी एक छोटा टुकड़ा पड़ा हो, है ना, कोई गंदगी हो, उसको हटा देना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। उस पढ़ा था, यहाँ मैं वो नहीं लिए हूँ। तो चूंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो पूरे को पूरी मानसिकता है ना, वो हमेशा जो शंकराचार्य का या बुद्ध का जो मोक्ष मुक्ति है वहां चले जाते हैं हम लोग। इसी तरह से मुझे लगता है कि मैम भी जिस तरह से मतलब उसको अपोज कर, इसीलिए हम उसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्योंकि कृष्णमूर्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत है उसको उसकी ना समझ के कारण, क्योंकि छोटी छोटी बातें, एक एक एटीट्यूड, अगर आपका सच में ही आपको आपकी बात से किसी को दुख पहुंच रहा है और आपने इस चीज को देख लिया और उस चीज में सुधार कर लिया, तो ये भी इट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन के, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कृष्णमूर्ति के लिए। कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार हो गया आंख बंद करके और कहीं जाके, इसलिए वो कह रहे हैं कि जीवन को यही संबंधों के दर्पण में देखना है। बताइए, जिस तरह से कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि इसलिए जब स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को संबंधों के दर्पण में देखेंगे तभी तो इंद्र क्रांति घटित होगी, और धीरे धीरे घटित होगी, एकदम से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। तो इस हिसाब से मान रहा हूँ कि एक इनर रेवोल्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल रेवोल्यूशन। हालांकि मैं ये बार बार मैंने कहा है उसमें कि मैं एक्सटर्नल रेवोल्यूशन को इस मामले में, फेमिनिज्म के मामले में पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि इसको जारी रहना चाहिए। थैंक यू। Next question is to Dr. Ruplika Khullar. Ma'am, it is asked by Pooja Raj that as mentioned by you, women and girls have been trafficked more often for slavery in many forms. However, in spite of living in their home, they have been raised to serve other all their lives. So I guess there is no escape from slavery for women who learns to abide, isn't it? Mean to say is that she must protest. If she is not going to protest, there is no way of escaping slavery. In some forms of slavery, yes. Unless there is protest from within and unless there is rebellion. There is rebellion. So what really is required is a movement. No wonder feminism has been defined more as a movement, and that's what I want to say, to emphasize over and over again, that feminism is not a way of thinking, not an orientation of the mind. It is a movement into which we must co-opt ourselves. We must become the movers of this movement. We must take part in it in order to bring about certain changes. So the modern forms of slavery, जिसमें domestic work को एक बहुत बड़ा वो माना है, that is a realization that even I must have. I don't do domestic work as a chore, yet I do domestic work in ways in which a man of the family is not expected to do. But that's the least offensive side of domestic work. The domestic work that migrant workers are having to come and do simply because they have to provide for their families, that they are paid less than minimum wages. There is no contract, no legal protection for them in this kind of work. The kind of conditions under which many of them work are actually very, very sexually predatory also. Many young girls are taken for work, taken outside of the country, or taken as domestic helpers. They are not allowed to go to schools, and very often the boys in the family may actually cast an evil eye on them. Some girls have even complained of being raped over and over again by the child in the family. These are forms of slavery. Slavery simply means that you have no control over your own destiny. Someone else controls you and puts a price on you and deprives you of the wherewithal to get out of that situation. From that point of view, there are many forms of slavery in today's world too.
and mostly women are the not wanting to use the word victims, yet victims of modern forms of slavery. Yes. Next question is to Rajesh sir. Sir, this question is asked by Sikha Gupta. सर, भारतीय दर्शन के वैदिक और महाकाव्य काल जो कि सूत्र काल के पहले रहा है, उसमें महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा है? पहली बात तो मैं ये शेखा जी से कहना चाहूंगा कि जब मैं सूत्र काल की बात कर रहा हूँ तो शायद उन्होंने, या तो मैं अच्छे से बोल नहीं पाया हूँ, तो महाकाव्य बाद में आ रहा है। मेरा सूत्र से मतलब है जो ऋग्वेद है, जो उस काल की बात कर रहा हूँ, जो मतलब ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक की बात है। तो महाकाव्य तो बाद में ही आएगा। भारतीय दर्शन के वैदिक को महाकाव्य काल जो कि सूत्र काल के पहले रहा है, पहले नहीं बाद में है महाकाव्य काल, उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो बस मैं शिखा जी से कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि दरअसल जो उस समय का मतलब ये भारतीय संस्कृति में सबसे उच्चतर स्थिति है कि कोई स्त्री किसी ऋषि का बन जाए, मतलब किसी सूत्र को रिवील कर ले। हालांकि मैं खुद उस परंपरा का नहीं उसको बहुत महत्व दे रहा हूँ, लेकिन जो परंपरावादी उसको इस तरह से कह रहे हो, मैं इस बात को मान रहा हूँ। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था कि, लेकिन ये जो मेरा ज्ञान बहुत सीमित है कि जैसा कि महादेव वर्मा ने श्रृंखला कड़ियों में भी इस बात को उठाया है कि फिर उसके बाद जो वैदिक काल में जो स्थिति स्त्रियों की, उसके बाद वो धीरे धीरे पतन की तरफ चली गई है। तो उन्हीं कारणों की समीक्षा के लिए पूरी बात, ये किताब उनकी लिखी गई है। तो यही मैं उसमें कहना चाह रहा हूँ। है ना, ऑलरेडी टाइम बढ़ चुका है, तो हम लोग बस एक क्वेश्चन और लेंगे दोनों स्पीकर्स के लिए। ओके मैम। Ma'am, there are 3 questions put by Shivani, so I think I must take the first one. It is to Dr. Rooplekha. Should I do that, ma'am? Yeah. Okay. Is it Dr. Shivani? Hello. It's written Shivani. Okay. So read out the first one. Okay. So, ma'am, the question to you is, the discussion of Archaic period suggests a structural institutionalization of the subordination of women. As per Gerda Lerner's perspective, can we say that women were the earliest slaves, and by dominating them, men learned to generalize their power over others, including men? What power? Sorry? As per Gerda Lerner's perspective, can we say that women were the earliest slaves, and by dominating them, men learn to generalize their power over others, including men? Yeah, but if by that question you mean that before slavery became a practice, men had not learned to dominate or to subjugate women, that would of course be incorrect, because even in prehistory, there are 2 primary explanations given for subjugation. One is sexual division of labor, and the other is biological determinism. Now, in both of these arguments were very prevalent in their understanding, in human understanding, much before slavery became a practice. No, actually, now that you've asked the question, I would have liked to ask Dr. Chaurasia, whether there is any question about women's condition during the Vedic period, because many historians have questioned this, कि Vedic काल में महिलाओं की दशा कुछ बहुत बेहतर थी या कुछ बहुत ही अच्छा था, जो कि धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे बाहर के फोर्सेस आए, ताकत आए, और उन्होंने औरतों पर हावी, वो पूरे देश पर हावी हो गए, तो औरतों की दशा बिगड़ती चली गई है। क्या is this a very accurate way of looking at the history of this country? मैम, इस बारे में मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा कोई अध्ययन नहीं है इस विषय में, क्योंकि मैं सिर्फ महादेवी वर्मा की जो श्रृंखला की कड़ी में उन्होंने इस तरह से दिखाया है, बस वही मैं बता पाऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई स्थिति बहुत अच्छी ना रही हो वैदिक काल में स्त्रियों की, लेकिन इस बारे में मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा अध्ययन इस विषय में, मेरा अध्ययन केवल श्रृंखला की कड़ियों तक ही सीमित है, जहाँ की उन्होंने इस तरह की बात, और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत भी नहीं हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने कुछ ही स्त्रियों का उदाहरण दिया, जिनमें मैत्री है, गार्गी है, उन्होंने उदाहरण देके बताया अच्छी स्थिति महादेव वर्मा ने। और उसके बाद अगर कोई और अध्ययन करे तो पता चल सकता है कि शायद ना भी रही हो, लेकिन इसमें मेरा कम से कम, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरा कोई अध्ययन नहीं है, मैंने उस तरह से इस बात को कभी
ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि पुरुषवाद व नारीवाद से समान दूरी की बात क्यों, जबकि समाज, राजनीति व संस्कृति में वह सर्च पुरुषवाद का है, ना कि नारीवाद का। तब पक्ष तो शायद लेना ही चाहिए। ये ईश्वर दोस्त जी का प्रश्न है और मैं बिल्कुल पक्ष ही ले रहा हूँ ईश्वर जी। मैं जहां अगर कोई अन्याय है तो मैं मतलब जो अन्याय करने वाले के पक्ष में नहीं हूँ। मैं अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो मैं नारी के पक्ष में हूँ। तो मैं बिल्कुल, आपको पता नहीं आपको ऐसा प्रश्न क्यों उठा कि मैं समान दूरी की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल समान दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के प्रति अन्याय कर रहा है, अगर कोई पुरुष है, अगर वो स्त्री के प्रति कोई अन्याय कर रहा है, तो मैं पुरुष के साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं स्त्री के ही साथ हूँ। और मैं आप जो कह रहे हैं उसके साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें उस स्त्री का पक्ष लेना ही पड़ेगा। और अगर जैसा कि सिमोन द बोवर ने कहा कि हमें हिंसक तरीके से लेना पड़े, तो भी उस एक लिमिट तक मैं मान रहा हूँ कि तो भी लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर कोई अन्याय है तो हमें उसको रोकना ही पड़ेगा। इन सब बातों के मैं मान ही रहा हूँ सारी चीजों को, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए हो सकता है ऐसी बातें कुछ आ गई हूँ। अदरवाइज मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर स्त्री कहीं प्रताड़ित है तो हमें स्त्री का पक्ष लेना ही पड़ेगा। हम समान दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पहले इमिनेंट कॉन्शियसनेस से उसकी और पूरी भावुकता के साथ, भावना के साथ उसकी समस्या को समझना ही पड़ेगा, है ना। तब उसके बाद लेकिन हम उसको हल करने के लिए हमें उस चीज को, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि दर्दा भी इस बात को मानता है कि किसी भी चीज को देखने के दो तरीके होते हैं। जी, मैं इस बात को, ये मेरी बहुत प्रिय बात है जो कहीं आज दर्दा में भी आ रही है कि हम पहले किसी भी चीज को अंदर से समझते हैं, फिर उसी बात को बाहर से देखते हैं। प्रोफेसर दयाकृष्ण ने मुझे सबसे पहले बात बताई थी, है ना। मैं कहीं उनके साथ मंदिर घूमने गया था, तो उन्होंने कहा था कि जैसे देखो हम इस मंदिर में हैं तो मंदिर को अंदर से देख रहे हैं, और फिर जब हम इस मंदिर के बाहर चले जाएंगे तो मंदिर को बाहर से देखेंगे। मैं उस अर्थ में ले रहा हूँ, मतलब हमें दोनों तरीके से किसी समस्या को और पूरी कंप्लीटली समझने की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि इमिनेंट कॉन्शियसनेस का या उसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसा कि मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के अंतर्द्वंद में या एक दूसरे को कोई निरस्त कर रहा है। और पक्ष लेने की बात है तो मैंने पहले ही बात बता दी है कि अगर कोई प्रताड़ित है, अगर कहीं कोई अन्याय है, तो अगर स्त्री प्रताड़ित है तो हमें स्त्री का पक्ष लेना चाहिए पूरी तरीके से, चाहे कैसी भी स्थिति में, है ना। अगर मार्क्सवादी बन के भी करना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि अन्याय के खिलाफ तुम्हें लड़ना है। थैंक यू। Thank you, Rajesh. Thank you, Hina, for reading out the questions and taking care of the session. So I would like to say a few words in the end of this session, that I would like to congratulate both of the speakers, because they have actually initiated so many thoughts and so many questions in the minds of the listeners, and that is the best way of provoking any audience. And if the audience is provoked, it means that your lecture is so successful. So you have given us a food for thought, and primarily, I would like to say that the way both of these speakers have tried to elaborate different approaches towards women's position in philosophy, and also how what kind of approach we should be adopting towards the solution of fighting against this sort of patriarchy, that is very amazing. So रूपलेखा मैम, आपने जिस तरीके से बताया कि women को एक commodity के form में जो हमने treat किया है, और उसे हमेशा एक ऐसी चीज समझी है जिसे हम जब चाहें जैसे चाहें यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री में ये रहा है और आज भी देखने को मिलता है, और हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, कई सारी सोसाइटीज में देखने को मिलता है। उसके अलावा ये पूरा का पूरा जो इश्यू है वो सिर्फ पर्सनल लेवल पे रह नहीं सकता, ये पॉलिटिकल है ही अपने आप में, और जब तक हम इसको पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे तब तक कोई चेंज आने की गुंजाइश नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ राजेश जी ने कहा कि ये पर्सनल लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर एक इनर कॉन्शियसनेस भी जगानी होगी, और दूसरा पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से जरूरी है कि हम उसके आउटसाइड जाकर भी देखें कि क्योंकि हम जब तक उसके अंदर रहते हैं तो शायद हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरीके की सफरिंग से गुजर रहे हैं। हम जब उसके बाहर से किसी चीज पे दृष्टि डालते हैं तो हमें उसकी एंटायरिटी नजर आती है कि वो क्या हो रहा है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हालांकि
अगर मैं गायत्री स्पिवाक वगैरह की बात करना चाहूँ, और कुछ पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स और हैं जो कि हमेशा ये आर्ग्यू करते हैं कि आपको विमेन की प्रॉब्लम समझनी है तो आपको एक विमेन होना पड़ेगा, अगर आपको एक दलित की प्रॉब्लम समझनी है तो आपको एक दलित बनना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर आपको दलित कास्ट की वुमन की प्रॉब्लम समझनी है तो आपको वो बनना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि जो इस कैटेगरी के बाहर के लोग हैं वो भी समझने की कोशिश करें कि आखिरकार इस कैटेगरी एज सच में क्या प्रॉब्लम है, तो स्ट्रक्चर के लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, जो कि शायद पॉलिटिकल लेवल में एंगेज करने के बाद ही हमें समझ में आएगा। तो मैं समहाउ कोशिश कर रही थी कि दोनों जो लेक्चर्स हैं उसमें क्या मैं लिंक देखूं और किस तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है अपने पर्सनल लेवल पर भी और अपने रिसर्च लेवल पे भी। आई होप द ऑडियंस हैज एंजॉयड these two lectures, and they have been given so many good thoughts to think about. So with these words, I would like to thank you. Thank both of the speakers of today's session. I would also like to thank Hina for organizing this or conducting this session with very nicely presenting the question and treating the speakers, introducing the speakers, and all the audiences who are very distinguished scholars, and they are very politely and they are very patiently listening to all the words of you, because they are the ones who are actually interested in bringing the change in the society. So I guess with this approach we can actually bring some kind of change in the society, and that is the motive behind this workshop. So with these words I would like to end this session, and I announce that today tomorrow at the same time, like in the morning session, it will start from 11 o'clock. So I hope that we'll be seeing more people, and since this is being live too, so many audiences are actually looking and listening to you simultaneously. So thank you so much everyone for being the part of this session and this workshop too. Thank you. Thank you, Riddhi ji and Hina ji. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am and sir. Thank you. Thank you.